So hello students. So I am back again for the remaining examples for the exercise 2.3. So in the previous video lecture I discussed on the concept of geometrical progression, that is geometric progression. In that the sum of infinity of geometric progression, that is also called sum to infinite terms of geometric progression. So there is a unique formula for that. S is equal to A upon 1 minus R. A is the first term and R is the common ratio of GP. So here this sum to infinity of GP exists only for modulus of R less than 1. Modulus of R less than 1 इसी को ही sum to infinity exist होती है. If it is greater than 1 or equal to 1, the sum to infinity does not exist. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हम प्रीवियस लेक्चर में. और रैशनल फॉर्म के जो दो फॉर्म होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग डेसिमल को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम टू इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. अब नाउ विल टेक एग्जांपल्स ऑन सम टू इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, एक्सरसाइज 2.3. राइट द एग्जांपल नंबर 4. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16. फर्स्ट टर्म दी है, सम टू इन्फिनिटी भी दिया है. वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट दिस. लेट A be the first term and R be the common ratio and S be the sum to infinity of GP. So therefore, first write given. First term is 16. Sum to infinity is 96 by 17. What we have to find here? So therefore, we have to find the common ratio. S is equal to A upon 1 minus R. S is 96 divided by 17. A is 16. Divided by 1 minus R. 1 minus R. So here 16 6 are 96. 16 6 are 96. Therefore 1 upon 1 minus R is equal to 6 upon 17. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 into 1 minus R is equal to 17. 6 minus 6R is equal to 17. 6R is equal to 6 minus 16, 17. ये टर्म राइट साइड को शिफ्ट की, ये लेफ्ट को शिफ्ट की. 6R is equal to 6 minus 17. Therefore 6R is equal to minus 11. So R is equal to minus 11 by 6. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था ये. नो मोर एक्सप्लेनेशन. ये फॉर्मूले में 3 टर्म है, एक ए है, एक आर है और एक एस है. 3 टर्म में 2 टर्म डी है. ये दिया है, एस दिया, हमें आर फाइंड करना है. तो बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जांपल था. इट इज वेरी क्लियर. सो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इज minus 11 by 6. सो आर मीन्स व्हाट? द कॉमन रेशियो. सो कॉमन रेशियो इज व्हाट? minus 11 by 6. ओके, वी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल आफ्टर 4. See the next example number 5. The sum of infinite GP is 5. Sum of infinite GP is 5 and the sum of square of this term. उसी GP की sum of their squares is 15. उसका कितना दिया है? 15 दिया है. Find the GP. So GP find करना means हमें A find करना है और R find करना है from the given two condition. So first of all write this. Let A be the first term and R be the common ratio of GP. Therefore
the GP is geometric progression is AR square, AR cube. So dash up to this. So इसका sum of infinity दिया है, sum of infinite GP is 5 दिया है उन्होंने. So therefore S is equal to A upon 1 minus R. So A upon 1 minus R is how much given? 5. Equation first. So उसका A upon 1 minus R, that is sum of infinite terms of this given GP is how much given? 5. Now he has again given sum of square of this term. इसका infinite term sum of square of term, that is also 15 दिया है. So let us start here. Also the sum of squares of this is 15. Therefore GP is A square R A square R square, पहली A square R square, A square R raised to 4, A square R raised to 6. So therefore first term is A square, common ratio is R square. Therefore S is equal to A square upon 1 minus R square. Here R square is also less than 1. R square भी कितना होगा? Less than 1 ही होगा. इसकी वैल्यू दी 15. A square upon R square is equal to 15. 15 दिया है 15. Therefore A square is equal to 15 into 1 minus R square. 15 into 1 minus R square, equation second. So from equation first हम इसको सॉल्व करेंगे. From equation first ये टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी. ये इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 5 इंटू 1 माइनस आर, 5 इंटू 1 माइनस आर. इसका स्क्वेयरिंग करेंगे. ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 इंटू 1 माइनस आर कंप्लीट स्क्वेयर. दिस इज इक्वेशन थर्ड. इसको शिफ्ट किया इधर और स्क्वेयरिंग किया. ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस आर होल स्क्वायर. अब सेकंड थर्ड इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे. दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है. देन वी कैन सॉल्व द राइट हैंड साइड. सो राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. सो फर्स्ट सेकंड का कितना है? 15 1 माइनस आर स्क्वायर is equal to 25 1 minus r whole square. So 5 3s are 5 5s are 3 into 1 minus r 1 plus r, 5 into 1 minus r into 1 minus r. So देखो यहाँ पर 1 minus r square का फॉर्मूला 1 minus r into 1 plus r, और ये 1 minus r whole square, it is 1 minus r into 1 minus r. So this term cancel. So therefore 3 ने मल्टीप्लाई करेंगे. 3 प्लस 3r 5 माइनस 5r. ये 5r इधर शिफ्ट हो जाएगा. 3r प्लस 5r, 5 माइनस 3, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में. सो हेंस 8r इज इक्वल टू 2. Therefore r is equal to 1/4. r कितना है? 1/4 which is less than 1. अगर r की वैल्यू 1/4 है तो कौन से एक इक्वेशन में पुट करो? Therefore ये अपॉन 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5.
a अपॉन 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, a अपॉन 4 माइनस 1 3/4 इज इक्वल टू 5. दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5 इंटू 3/4. इधर मल्टीप्लाई हो गया. So a is equal to 5 into 3/4. So what is the value of a? A is equal to 15/4. 5 3 is 15. So this is 15/4. So we have to find GP means. GP में सबसे important क्या होता है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. फर्स्ट टर्म भी फाइंड हुई और कॉमन रेशियो हमने फाइंड किया है. सिर्फ ये दो कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन व्हाट? द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP इज 5 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 25. उसी GP का सिर्फ स्क्वायर लेना है. सो स्क्वायर लेने के बाद उसकी फर्स्ट टर्म a स्क्वायर आ जाएंगी. कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? r स्क्वायर. सो एक ही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इधर भी. सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, कॉमन रेशियो r स्क्वायर है. और सिर्फ कैलकुलेट करके हमें फर्स्ट टर्म मिल गई 15/4 और कॉमन रेशियो कितना मिल गया? 1/4. सो हेंस देयरफॉर द GP इज फर्स्ट टर्म कितना? 15/4. फर्स्ट टर्म इंटू r, फर्स्ट टर्म इंटू r स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इंटू r क्यूब, फर्स्ट टर्म इंटू r क्यूब. a इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब. सो इसको कैलकुलेट करो सिर्फ अब. 15/4, 15/16, 15/64, 15/256 and so on. This is our answer. 15/4, 15/16, 15/64, 15/256. This is a GP. So A important, R important. So we'll get A and R. This is our answer. That is called the GP of the given condition. Okay. We'll take next. So ये पूरा लिख के लिए सब सोल्यूशन है. A की R की वैल्यू 1/4 है, A की वैल्यू 15/4 है. 15/4. ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है. सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर है. सो राइट साइड मैंने सॉल्व किया, इक्वेट किया और सॉल्व करने के बाद r की वैल्यू 1/4 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई? 15/4. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. वी हैव टू फाइंड आउट a एंड r. अब a और r की वैल्यू जो हमने GP कंसिडर की, ये GP होती है AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR⁴. इसमें सिर्फ वैल्यू रख दी मैंने, वो बन गया हमारा आंसर. दैट इज GP 15/4, 15/16, 15/64 and 15/256. So on. That is the answer. So ready for next example. Example number 6 from the same exercise 2.3. ये सिग्मा आ गया फिर से. सिग्मा इज अ सिंबल वो रिप्रेजेंट द सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, बिकॉज ऊपर इनफाइनाइट है. लास्ट एग्जाम्पल दैट देयर वाज द n. So that is called as sum to n terms, but this is sum to infinite terms. Sum to infinite terms means it is GP का कंसेप्ट है वो. S is equal to a upon 1 minus r उसका फॉर्मूला है. उसी पर एग्जाम्पल लेंगे हम. देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया तो बाकी सब आपको डेफिनेटली आएंगे. ये जो r है, ये r की जगह पर हमें 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिखना है. 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 और बीच में कौन सा साइन देना है? प्लस, बिकॉज सिग्मा मीन्स व्हाट? सम टू इनफाइनाइट टर्म्स, सम टू इनफाइनाइट फ्रॉम 1 to infinite. So here, so first example is sigma r is from 1 to infinite 4 into 0.5 raised to r. So यहाँ पर हर टाइम r ही होना जरूरी नहीं है, n भी हो सकता है, i भी हो सकता है, p भी हो सकता है. यहाँ पर r है तो r is from 1 to infinity, i है तो i is from 1 to infinity. यहाँ पर n है, n is from 1 to infinity. So ये 4 कांस्टेंट आउटसाइड लेंगे. 0.5 raised to 1 plus 0.5 raised to 2 plus 0.5 raised to 3 plus 0.5 raised to 4, so on. 0.5 means 1/2. 0.5 means 5/10 और 5/10 कितना होता है? 1/2.
0.5 का एक्चुअल मीनिंग क्या है? 5/10, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 raised to 4, so on. So here first term is 1/2, r is also 1/2 which is less than 1. Modulus r is less than 1, so sum to infinity हम solve कर सकते हैं. So therefore 4 into a upon 1 minus r, a upon 1 minus r. So 4 into a कितना है? 1/2. r कितना है? 1/2. ये 4 times 1/2 upon 1/2. So cancel. What is answer? 4. So इसकी सम कितने आ गई? 4 आ गई. So ये एक एग्जाम्पल. अभी सब एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली आएंगे. आई विल सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल. हियर इज सेकंड एग्जाम्पल. सिग्मा r is from 1 to infinity -1/3 raised to r. अभी -1/3 एग्जाम्पल मैंने जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाई थी, सिखाई थी, तभी वो हो गई थी. जब मैंने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की जो डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, दैट टाइम मैंने ये एग्जाम्पल लिया था. सो नाउ आई विल स्टार्ट द थर्ड एग्जाम्पल. यू ट्राई दिस सेकंड एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल हुआ एक बार हमारा. सो आई विल स्टार्ट द थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड इज दिस. सिग्मा r is from 1 to infinity -8 -1/2 raised to r. So इसको हम -8 बाहर लेंगे. इन ब्रैकेट -1/2 raised to 1, -1/2 raised to 2, -1/2 raised to 3, -1/2 raised to 4, up to infinity. 1 2 3 4, 1 to infinity, 5 6 7 up to infinity. दो चार टर्म लिखना जरूरी है बस. सो दिस फॉर्म्स एन जीपी. सो फर्स्ट टर्म उसकी -1/2 है. रेशियो भी -1/2 है. मॉडुलस r इज इक्वल टू +1/2 विच इज लेस देन 1. सो यहाँ पर ये फॉर्मूला ये -8 टाइम्स तो एज इट इज, ये अपॉन 1 माइनस r, -8, a is -1/2, r is what? 1 minus -1/2. -1/2 का स्क्वायर कितना है? -1/2 का स्क्वायर +1/4, +1/4 अपॉन -1/2, ये आ गया -1/2. सो रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए. वो रेशियो मैंने फाइंड करके दिखाया आखिरी में. So it is -8, ये -1/2, 1 + 1/2 is 3/2, ये 2 cancel. So this is equal to -8 times -1/3. So answer is +8/3. So this is the answer of this third example. ये सेकंड एग्जाम्पल मैंने डेफिनेशन के टाइम एक्सप्लेन किया था. फर्स्ट हो गया, थर्ड भी हो गया. ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करो. 1 to infinity, एक बार 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 5. इसका फर्स्ट टर्म 0.4 है. कॉमन रेशियो फाइंड करो और सॉल्व करो. ओके, सो विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल आफ्टर 6. वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ सिग्मा. Now see the next example, example number 7. A geometrical based example. Actual, this is the example of application of sum to infinite of geometric progression. Sum to infinite of geometric progression का geometry में क्या application है? ये देखो एग्जाम्पल मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है, बिकॉज मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ और ये राइटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा पहले ही. So read the question first. The midpoints of the sides of a square of a side is R1 are joined to form a new square. ये बड़ा स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है? 1 है. उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करने से और एक स्क्वायर बन जाएगा. द सेकंड स्क्वायर, उसका भी मिड पॉइंट ज्वाइन करो, अगेन एक स्क्वायर बन जाएगा. दिस प्रोसेस इज रिपीटेडली इनफाइनाइट टाइम्स. सो हमें ये जो प्रोसीजर रिपीटेड इनडेफिनेटली फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर्स. हमें सब स्क्वायर का एरिया का सम फाइंड करना है.
सो ये डायरेक्टली तो हम दूसरे कहीं से भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये जीपी से सॉल्व हो सकता है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इससे सॉल्व हो सकता है। सो प्रोसीजर होगा ऐसे ही, ये जो बड़ा स्क्वायर है उसकी लेंथ 1 यूनिट दी है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, 1 इज द साइड, सो इट इज 1 स्क्वायर। ये बड़ा स्क्वायर फर्स्ट इज ओवर। नाउ वी हैव टू कंसीडर दिस इज सेकंड स्क्वायर, उसके हम लेंथ x कंसीडर करेंगे, ये x और x, राइट। So the x be the side of a second square, then x square फाइंड करेंगे, that is x square, so 1/2, ये 1/2 है, मिड पॉइंट है, that's 1/2, ये भी 1/2 है, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर इज 1/2। सो x कितना आ गया, 1/√2 आ गया, सो दिस इज 1/√2। ये लेंथ कितने आ गए, 1/√2 आ गए, सो दिस x इज 1/√2। सो उसका एरिया साइड 1/√2 है, x की वैल्यू 1/√2 है, तो उसका स्क्वायर एरिया कितना आ गया, 1/2 आ गया। सो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज द साइड x इज इक्वल टू 1/√2। नाउ दिस थर्ड स्क्वायर, अब ये सेकंड स्क्वायर का मिड पॉइंट अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसका अगेन एक स्क्वायर बनता है, सो दिस इज y और ये y। सो y कैसे फाइंड करेंगे, ये अगर 1/√2 है तो ये भी 1/√2 है, 1/2√2 का स्क्वायर प्लस 1/2√2 का होल स्क्वायर इज 1/4। y स्क्वायर अगर 1/4 है तो y कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, सो दिस y इज हाउ मच, 1/2। सो इसका थर्ड जो स्क्वायर है, तो थर्ड स्क्वायर एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर इज 1/4। फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, area of square is 1/2, area of third square is 1/4, so it is in infinite times. So the sum of the all areas of all square, the areas of all square is 1 plus 1/2 plus 1/2 square forms of GP। ये GP बन जाएगा। इसकी जो थर्ड फोर्थ स्क्वायर आ जाएगा, so उसका एरिया कितना आ जाएगा, डेफिनेटली 1/2 होल क्यूब, 1/2 होल क्यूब। सो ये अपॉन 1 माइनस ये सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला, ये इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1, रेशियो इज 1/2, सो ये अपॉन 1 माइनस r, नॉट 1/r, इट इज r। सो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1 अपॉन 1/2 इज 2, सो दैट इज द 2 स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज द एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर, ये उसका आंसर बन जाएगा। ओके, सो और एक एग्जांपल इस सेकंड पार्ट ऑफ दिस एग्जांपल विल टेक इमीडिएटली आफ्टर दिस। So let us see second example. From the same example, the perimeter of all squares, perimeter find करना है। So side of first square is 1, therefore perimeter is equal to 4 into 1 is equal to 4. Side of second square is 1/2. Therefore, perimeter is equal to 4 into 1/2 is 2. 4 into 1/2 is 2. नहीं तो 4 into 1, 4 into 1/2 ऐसे लिखता हुआ चलेगा। नेक्स्ट, साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर is 1/2 square. Therefore, side of a second square is not 1/2, is 1/2. So it is a 4 into 1/2. So this is 4 into 1/2. Side of a third square is not 1/2, it is only 1/2. So perimeter is 4 into 1/2. Okay. Now sum of
sum of perimeter of all square, sum of perimeter of all squares, फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, 3 स्क्वायर लिखा तो भी सफिशियंट है. इट इज 4 into 1, 4 into 1 by root 2 प्लस 4 into 1 by 2 सो ऑन. यहां से 4 कॉमन लेंगे, इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय रूट 2. ये 1 बाय 2 को 1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर करेंगे, सो ऑन. So this forms GP. This is GP. So first term is here. A is equal to 1 and ratio is 1 by root 2. Therefore sum is equal to, ये 4 times as it is रहेगा, 4 times into A upon 1 minus R. So 4 times A upon 1 minus R. So 4 times root 2 minus 1 divided by root 2. root 2 ऊपर जाएगा, 4 root 2 divided by root 2 minus 1. This is sum. अब यहाँ पर इसका रैशनलाइज भी कर सकते हैं आप. root 2 minus 1 से प्लस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. हम इसको रैशनलाइज करेंगे root 2 plus 1 से 4 root 2 into root 2 plus 1, root 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1. दिस इज आंसर 4 root 2 in bracket root 2 plus 1. So this is yes. So this is the application of sum to infinity of geometric progression. So एक एग्जाम्पल है स्क्वायर का. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इसका सम टू इन्फिनिटी, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी अप्लाई कर सकते हैं. सो और एक एग्जाम्पल बाकी है, आप ट्राई करो, कोशिश करो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा. बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सिर्फ आपको हर एक एग्जाम्पल का सोल्यूशन बनाना है, कॉपी करना है और प्रैक्टिस करना है. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स इस टेक्स्ट बुक में है जो सॉल्व एग्जाम्पल है, वो भी आप ट्राई करो, वो भी आप कॉपी करो, नोटबुक में लिखो, तभी ये टॉपिक परफेक्ट बन जाएगा. बहुत ही सिंपल एक कंसेप्ट था, सम टू इन्फिनिटी ऑफ जीपी. सिंपल फॉर्मूला था ए अपॉन 1 माइनस आर. ऑलमोस्ट मैंने ऑल एग्जाम्पल्स लिए हैं. कुछ 1-2 एग्जाम्पल मैंने स्किप किए बिकॉज वो दैट एग्जाम्पल्स आर वेरी सिमिलर टू प्रीवियस एग्जाम्पल्स. आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपको आ जाएंगे. सो हियर दिस आर्टिकल of geometric progression is completed, that is sum to infinite terms of GP. So we'll stop here. Thank you very much.